Assalamualaikum and good morning, ladies and gentlemen. It's been absolutely pleasure to be here today, hosting this live session with our truly respectful ma'am Iram Sabah. Thank you, ma'am, for having us hosting this live session, and it's really a really good opportunity for us for conveying our ideas and thinkings and asking yours on behalf of all the students who are not only camera shy but I believe they have questions in their minds, but they are not willing to ask them from their instructors or the professionals. So thank you once again, ma'am, for having such an amazing opportunity for us. And so let me start off with my own personal introduction. So my name is Manahil Yasir, and I am doing BBA, Bachelor's in Business Administration, and from NCBU University. And most importantly, we have another co-host with us, Mr. Alizan Kazmi. Thank you. And he'll introduce himself, and then we'll get straight into the session. Thank you, Manahil. आई एम अलीज़ान काज़मी और मैं BBA के 3rd सेमेस्टर में हूँ और थैंक यू सो मच मैम हमें आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा। तो आगे फर्दर हम आपसे क्वेश्चंस करना चाहते हैं कि फ़िलासफ़ी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ये सारा जो भी सिनेरियो है ये सारा स्टार्ट इंशाल्लाह ये करेंगे अभी, तो प्लीज़ आप स्टार्ट करें। सो लेट्स गेट इनटू द सेशन। मैम सबसे पहले तो बताएं आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से। और मैम सबसे पहले तो मैं ये बात डिस्कस करना चाहूँगी कि आज के सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है। व्हाट इज़ फ़िलासफ़ी, व्हाट इज़ बेसिक्स ऑफ फ़िलासफ़ी एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी फ़िलासफ़ी इन आवर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। सो मैम सबसे पहले तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जब आई वॉज जस्ट एनरोलिंग माई कोर्स एंड इट वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी दैट वाई वी आर स्टडिंग philosophy and why we are enrolling this course and why we are gonna study as we are business students, and it's really uncommon for us to study philosophy. So it was quite shocking, as you could also say that. So ma'am, when I started, it created a curiosity in my mind that we have to know what's the reason why we are studying this. So when I started researching, and I consulted you as well for this, and when I started studying this, it was really impressive for me that not only business students, but also the whatever the field is, it's MBBS and either it's computer science students, all of the students have to study philosophy and that's it. So ma'am, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि what is, जैसे लोगों के आजकल के सोसाइटी में ये है कि सब जैसे भी मैं अगर किसी से भी बात करूँ philosophy को लेके, तो उनके they have just negatively overwhelmed thinking towards the philosophy. अगर मैं किसी से भी पूछूं जाके तो वो सिर्फ मुझे एक हम क्यों पढ़ें, क्या है हाँ, ये, क्यों पढ़ें, और सिर्फ उनके जहन में ये होता है कि philosophers are mad. They conclude it just saying this philosophers are mad. They overthink. They don't have any proper destination. They don't have any proper aim, and they just misguides these people. एंड इसमें आपका शेयर जो कि मैं ऐड करना चाहूँगी कि फ़लसफ़ी को बहस में खुदा मिलता है नहीं, फ़लसफ़ी को बहस में खुदा मिलता है नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं. So it's really quite negatively overwhelmed society thinking, which we have to accept this. So please tell me about this, that how can we overcome these thinkings of the people, and how can we deal with this, and how can we tell people what is philosophy and what is its importance. क्या कहेंगे आप इस लाइन में? ऐसा ही है मनाहिल, काफ़ी अच्छा आपने सवाल किया है। जब मैंने मास्टर्स किया फ़िलासफ़ी में और मेरा करियर जो पंजाब यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ, तो मैंने BIT और BCS के स्टूडेंट्स को फ़िलासफ़ी पढ़ाई, और उसके बाद हैले कॉलेज में MCOM के स्टूडेंट्स को। तो वो ये कहते थे कि हम तो बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं, हम IT के स्टूडेंट्स हैं, हम CS के स्टूडेंट्स हैं, तो हम फ़िलासफ़ी क्यों पढ़ें। और आज सुबह भी मैं फेसबुक यूज़ कर रही थी तो मैंने एक कमेंट देखा, किसी ग्रुप में लिखा हुआ था कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने के जो फ़िलासफ़ी का डिपार्टमेंट है उसने तो सिर्फ मौलवी हजरात पैदा किए। ये मैंने आज सुबह एक कमेंट देखा है। और फ़िलासफ़र्स जो हैं वो पागल होते हैं और उनका वो हमें हमारे मज़हब से दूर कर देते हैं, वो ख़यालात की वादी में इंसान को ले जाते हैं
और किसी भी मंजिल तक लेकर नहीं जाते। ये कायदा से बिल्कुल ये गलत तसव्वुरात हैं, गलत फहमियाँ हैं। Exactly. और फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल यही होता है कि मैम हम क्यों पढ़ें फ़िलासफ़ी, जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ ये सेशन। तो देखिए मनाहिल और जैन यूनिवर्सिटी में इंशाअल्लाह ताला जब आप BBA करोगे, आप ग्रेजुएट होगे, यूनिवर्सिटीज़ जो ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करती है उसका काम ऐसे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करना है जैसे आप लोग होंगे, जो कि मुआशरे की, सोसाइटी की, इंडस्ट्री की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है, यूनिवर्सिटी का काम ऐसे ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस करना है। तो ये मुमकिन कैसे होगा? ये मुमकिन होगा क्रिटिकल थिंकिंग से। जितनी अच्छी आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं उतना ही अच्छा आप अपनी रियल लाइफ की, पर्सनल लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ की और एकेडमिक लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये फ़िलासफ़ी का जो पर्पज़ है वो क्रिटिकल थिंकिंग इन्हांस करना है। देखो, जब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इन्हांस होती है, इम्प्रूव होती है, आप लिखते अच्छा हो, आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, आप बोलते अच्छा हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है वो बेहतर होती है। तो फ़िलासफ़ी ओवरऑल आप ये कह सकते हो इट्स ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो बिज़नेस के जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रही हैं वो कौन कौन से हैं? लाइक आप 3rd सेमेस्टर में हो? ओके, फ़िलासफ़ी के अलावा कौन से हैं? फ़िलासफ़ी के अलावा हमारी है रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। इसके अलावा हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग 2 पढ़ रहे हैं। इसके अलावा फिर हम लोग मैनेजमेंट। ठीक है, देखो फ़िलासफ़ी जो आपके बिज़नेस के जो डिसिप्लिन्स हैं, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, ऑल अबाउट बिजनेस। अब मार्केटिंग पढ़ते हो, HR पढ़ रहे हो, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ोगे, सप्लाई चेन पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ोगे। तो फ़िलासफ़ी वाहिद वो सब्जेक्ट है, वो डिसिप्लिन है कि जिसकी क्वेश्चन डीलिंग बहुत वास्ट है। एक तो फ़िलासफ़ी ऑफ मार्केटिंग है कि आप मार्केटिंग में पढ़ क्या रहे हो, फ़िलासफ़ी ऑफ HR है, फ़िलासफ़ी ऑफ अकाउंटिंग है, फ़िलासफ़ी ऑफ जैसे आपने बताया जो भी सब्जेक्ट्स के नाम लिए हैं, मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। एक तो क्रिटिकल थिंकिंग इन सब्जेक्ट्स की हो गई कि आप बेसिकली पढ़ क्या रहे हो। दूसरी बात ये कि फ़िलासफ़ी की क्वेश्चन डीलिंग इतनी वास्ट है कि जो किसी और सब्जेक्ट में नहीं है, और इसीलिए फ़िलासफ़ी को मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस भी कहा जाता है कि जैसे ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस से स्टार्ट होती है। इंसान का जो वजूद है उसका क्या पर्पस है, ठीक है ना, इस दुनिया में क्यों आया है, गॉड है या गॉड नहीं है, इंसान का गॉड के साथ क्या ताल्लुक़ है, इंसान का मज़हब के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या मज़हब की ज़रूरत इंसान को है, तो इंसान का कायनात और खुदा से के साथ क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, साइंस क्या है, फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस क्या है, फ़िलासफ़ी एंड साइंस क्या है, यानी साइंस किस हद तक फ़लसफ़े की मदद करती है और साइंस और फ़लसफ़े में क्या मुश्तरक है और क्या डिफरेंसेस हैं। ऐसे रिलीजन है, फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन भी हम इसको स्टडी भी करेंगे आगे, और फ़िलासफ़ी एंड रिलीजन भी है कि मज़हब बेसिकली है क्या और मज़हब और फ़लसफ़े में क्या मुताबिकत है और क्या डिफरेंसेस हैं। इसी तरह से आप देखो फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ है, फ़िलासफ़ी ऑफ साइकोलॉजी है, फ़िलासफ़ी ऑफ सोशियोलॉजी है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो उसकी भी एक फ़िलासफ़ी है और फिर अलग से डिफरेंसेस भी हैं। अभी हम जैसे ब्रांचेस की हम स्टडी भी कर रहे हैं और आपके साथ मेरा एपिस्टेमोलॉजी का लेक्चर चल रहा है, तो ओंटोलॉजी है, एक्सियोलॉजी है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो फ़िलासफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है, सेकेंडली इसकी क्वेश्चन डीलिंग बहुत वास्ट है, ये किसी और डिसिप्लिन में नज़र नहीं आती। तीसरा मुझे बताओ, आप डेजिटेशन करोगे, आप थीसिस जो प्रोजेक्ट होता है जी बिल्कुल, वो आप करेंगे, किस सेमेस्टर में है? मैम आई गेस लास्ट सेमेस्टर में। लास्ट सेमेस्टर thesis में। वगैरह। देखिए, फ़िलासफ़ी आपके रिसर्च में हेल्प करती है। आप चाहे क्वालिटेटिव करो या क्वांटिटेटिव आप रिसर्च करो, तो जो आपकी रिसर्च है ना, मेन चीज़ होती है मैथडोलॉजिकल पाथ, कि आपका मैथडोलॉजिकल पाथ क्या है, आपका रिसर्च मेथड क्या है, और आप ये कहते हो कि मेरा ये रिसर्च मेथड होगा और ये मेरे प्रोजेक्ट के लिए, मेरे थीसिस के लिए सूटेबल है। तो जैसे एक दरख्त है, दरख्त की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? जड़। जड़ होती है। तो जब हम रिसर्च की बात करते हैं, तो फ़िलासफ़ी रिसर्च की बात करते हैं, तो जो मेन चीज़ है वो जड़ है। तो आप कहो कि आप ये कह सकते हो कि जो जड़ है वो मैथडोलॉजिकल पाथ है और वो फ़िलासफ़ी डिफ़ाइन करती है। तो जितना अच्छा वो पाथ होता है उतनी अच्छी आप रिसर्च करते हो, आप हाइपोथेसिस बनाते हो, रिसर्च करते हो, किसी कंक्लूजन तक पहुंचते हो, किसी मसले को हल करते हो। तो इसी तरह से देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि फ़िलासफ़ी
हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इन्वॉल्व है। अभी जैसे आप बीबीए कर रहे हैं, आगे अब तो आप आ गए हो, अब जो होना था हो गया, अब आपने बिजनेस चूज़ कर लिया है, ठीक है, इधर कॉलेज में भी आ गए हो। तो अब आगे क्या करना है आपने? अब आपने जॉब करनी है या बिजनेस करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम जब करियर प्लानिंग की बात करते हैं, उसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व है, फिलॉसफी इन्वॉल्व है। कैसे कि अगर आपने बीबीए किया है तो अब आपने जॉब करनी है, सबसे पहले आपने पहली बात ये है कि सबसे पहला स्टेप ये होता है खुद को एक्सप्लोर करें। करियर प्लानिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप खुद के आपने करना क्या है, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपका पैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। सबसे पहले जैसे कहते हैं ना फ्रीलांसिंग, हमारी क्लास में काफ़ी बच्चे कर रहे हैं, तो मैं उन्हें ये कहती हूँ कि आप पहले देखो आपका पैशन क्या है। हर चीज़ आप नहीं सीख सकते, पहले एक्सप्लोर करो वो कौन से फ्रीलांसिंग फील्ड्स हैं, फिर उसके बाद उसे चूज़ करो। तो जैसे करियर प्लानिंग में आप जब इंशाल्लाह ये बीबीए करेंगे तो आप सबसे पहले अपने आप को पहले एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसके बाद आप देखते हो इंडस्ट्री, मैंने टेक्सटाइल में जाना है, मैंने बैंकिंग में जाना है, मैंने टेलीकॉम में जाना है, मैंने किस इंडस्ट्री में जाना है। फिर उसके बाद करियर एक्सप्लोर करते हो कि मेरा करियर कौन सा है, मैंने कौन सा करियर चूज़ करना है। फिर आप डिसीजन लेते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फ़िलासफ़ी तो हर जगह पर आ गई, तो क्योंकि क्रिटिकल फ़िलासफ़ी इज़ ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। ये हर जगह पे इन्वॉल्व है, हर स्टेप में इन्वॉल्व है। जैसे आप रेज्यूमे बनाते हैं, रेज्यूमे में क्या चीज़ें हैं, आपके स्ट्रेंथ्स हैं, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपके इंटर्नशिप्स हैं। तो जितनी अच्छी आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो उतना अच्छा रेज्यूमे बनता है। तो वो जो बात है ना, शायर हो, अदीब हो, अफसाना निगार हो, सिंगर हो, बिजनेसमैन हो, फ्रीलांसर हो, कुछ भी हो, जितनी अच्छी वो फिलोसोफर होगा। अब जैसे मैं भी लिखती हूँ तो काफ़ी लोग कहते हैं आप इतना अच्छा कैसे, तो मैं कहती हूँ ये इट्स ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। तो जितना अच्छा आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे उतनी अच्छी आप स्टूडेंट होंगे, उतना अच्छा आप कामयाब होंगे। मैम मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है कि लाइक एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो मेरे जैसे बहुत लोगों को लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स वही होते हैं कि अपने बलबूते पे बिजनेस शुरू कर लिया है तो मिलियनेयर बन गए हैं, बिलियनेयर बन गए हैं। तो आप पहले हमें सही डेफिनेशन बता दें कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो आप बेसिकली बिजनेस में स्टूडेंट से कहते हैं हमने एंटरप्रेन्योर बनना है, हम तो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं। तो ये फ़िलासफ़ी एक ख़यालात की बात है, थिंकिंग प्रोसेस है जी। और बिज़नेस तो एक प्रैक्टिकल चीज़ है। हमने तो कॉस्ट रिडक्शन की बात करनी है, हमने रेवेन्यू की बात करनी है, हमने सेल्स कैसे जनरेट करनी है, हमने क्लाइंट्स कैसे लेने हैं, हमने बिज़नेस कैसे ग्रो करना है। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और फ़िलासफ़ी सिर्फ थॉट्स हैं, थिंकिंग प्रोसेस है। फ़िलासफ़ी इज़ इक्वल टू थिंकिंग प्रोसेस, क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए एक मैंने कोटेशन आज मैं देख रही थी सुबह, आई थिंक आइंस्टाइन की थी। उसने कहा कि मुझे कोई मसला दिया जाए हल करने के लिए, कोई भी, मैं 55 मिनट्स लगाऊंगा उस मसले के बारे में सोचने के लिए कि मसला है क्या, उसके बारे में सोचूंगा, और 5 मिनट उसके हल के बारे में सोचूंगा। 5 मिनट्स और 55 मिनट्स की बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। तो जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। ये जब तक आपका नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। आप फ्रीलांसिंग, आप जॉब, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इज़ ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। कि एक एंटरप्रेन्योर ने एक पोटेंशियल इन्वेस्टर से बात करनी है, डिबेट करनी है कि ये एग्जिस्टिंग मार्केट है, एंड यूज़र की ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये यूनिक वे है कि हम ये हल कर सकते हैं, ये मेरी सर्विसेज हैं, ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं, और ये एक आप उस प्रॉब्लम को, एंड यूज़र की प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेते हैं। आप कहते हैं कि ये प्रॉब्लम इस तरह हल हो सकती है, तो आपकी एक अच्छी डिबेट कर सकते हो। तो जितना अच्छा आप डिबेट करते हो, जितनी अच्छी आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, तो उतना अच्छे आपके चांसेस होते हैं आपको स्टेक होल्डर्स के मिलने के। तो आपका जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है, फ़िलासफ़ी टीच यू हाउ टू मैनेज, क्योंकि ये बड़ा हेक्टिक है, बड़ा पेनफुल है, मैं ख़ुद भी इससे गुजरी हुई हूँ, मेरा अपना भी ये काम है। तो फ़िलासफ़ी उसमें बड़ी अनसर्टन सिचुएशंस होती हैं, बड़े चैलेंजेस होते हैं, और बड़ा हेक्टिक और पेनफुल होता है। फ़िलासफ़ी टीच यू हाउ टू मैनेज, कि आपने इन सिचुएशन से कैसे निकलना है, आपने क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करनी है, खुद का सेल्फ एनालिसिस कैसे करना है, सेल्फ डाउट में नहीं जाना, क्योंकि काफ़ी वो फेल इसलिए भी हो जाते हैं कि वो सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि हम नहीं कर सकते। आप कर लेंगे, आपका एक बिलीफ है, आपका एक डिसीजन है, नहीं मैं करूँगा, और वो आप करते हैं। तो ये चीज़ फ़िलासफ़ी सिखाती है, रैशनैलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन पावर जिसे आप कह लें।
फिर एक चीज़ जैसे मैंने बात की कि देखिए एग्जिस्टिंग मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना, पहले प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, ये मसला है और इसका ये सर्विस और प्रोडक्ट अभी नहीं है, इसका ये हल इस तरीके से भी हो सकता है, या जो सर्विसेज दी जा रही हैं इस तरीके से भी हम, वो बेसिकली अपॉर्चुनिटी निकालता है। क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं बिल्कुल कि ये मसला है और ये अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल। तो ये जितनी अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग होगी। अच्छा, एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, प्रोजेक्ट आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं? ओके। और जैसे आप प्रोजेक्ट करते हैं या बिजनेस प्लान आप बनाते हैं या प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या है? मैंने कोई रेस्टोरेंट खोलना है, मैंने कोई मोबाइल शॉप बनानी है, या मैंने कुछ भी बुटीक का काम करना है, या मैंने कुछ भी करना है, या मैंने अपना कुछ सर्विसेज आईटी की प्रोवाइड करनी है। आप एक पूरा प्लान बनाते हो, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा प्लान है, ये मैं करना चाह रहा हूँ, इसके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये मेरे कस्टमर्स हैं, ये कॉस्ट आ रही है, ये मेरी इक्विटी है, ये मेरा टोटल एसेट है, ये वर्किंग कैपिटल है। आप उसकी प्रोजेक्ट फाइनेंसेस बनाते हो, प्रोजेक्ट इकोनॉमीज़ बनाते हो, आप उसमें देखते हो IRR जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना आएगा, NPV कितनी होगी, आप उसमें कॉस्ट देखते हो, आपका रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, फर्स्ट ईयर में कितनी सेल्स होंगी, सेकंड ईयर में कितनी होंगी, थर्ड ईयर में कितनी होंगी, पे बैक पीरियड मैं कैसे निकालूंगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? माइंड सेट से, सोच से। तो ये बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल वो बात है, मैं एंड में वही कहना चाहूँगी कि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आप या ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं, या फ्रीलांसर हैं, राइटर हैं, कुछ भी आप हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, जज हैं, यू हैव टू बिकम अ वेरी गुड फिलोसोफर। तो जितना अच्छा आपका फिलोसॉफिकल एटीट्यूड होगा, जितना अच्छा फिलोसोफर होंगे, उतना अच्छा आप कामयाब होंगे। Here we will end up our session. Hope you guys all enjoyed it and feel so informative. And thank you, ma'am, so much for such an amazing and informative that you shared with us. And हम आगे भी अल्लाह ताला करे कि हम लोग ज़्यादा सेशंस आपके साथ करते रहें। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो। थैंक यू। बाकी वीडियोस भी देखिएगा, बाकी भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं फिलॉसफी के हवाले से, तो आप बाकी वीडियोस भी देखिएगा और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और जो टीचर्स हैं उनको भी रेकमेंड करें। मैम बहुत अच्छी है। We'll catch you in another video. Thank you. Allah Hafiz.